बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द केस कि कैसे करना है, किस तरीके से साइन कन्वेंशन, ऑल दोस थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, just understand a very important and very small definition that bending movement is nothing but the internal resistance. The internal, what we have to like study is the internal resistance of the body against external bending moment. External bending moment लगेगा, उसके अगेंस्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उस इंटरनल रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम प्लॉट करेंगे. जब when you will plot that internal resistance, तो उसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसको हम बोलते हैं. ठीक है, किसको जब आप प्लॉट करते हो, किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को, किसकी वजह से, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की वजह से. बेंडिंग मोमेंट का एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है दैट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बेसिकली फोर्स से रिलेटेड ही होता है. और एक चीज हमें ये पता है कि बेंडिंग मोमेंट जब एक्सटर्नल लगता है तो इंटरनल बॉडी सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट करती है. वो नॉर्मल स्ट्रेसेस ही बेसिकली रिलेट करते हैं, आपको नॉर्मल फोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सियल फोर्सेस में, जिसका मोमेंट इंटरनल मोमेंट कहलाता है. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी द साइन कन्वेंशन. वी हैव टू कवर द साइन कन्वेंशन फर्स्ट. साइन कन्वेंशन सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द साइन कन्वेंशन इज. We will not start with the anti-clockwise and clockwise convention. वो confuse करता है. जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही ध्यान रखना है आपको. We will consider this movement, this is sagging, to be positive and this movement to be negative. This is positive and this is negative. Whenever you have to find out the convention, whenever you have to find out the bending moment about any point, you have to hold that point, hold the point, उस point को पकड़ लेना है. And then you have to check the movement. You have to check the movement between the point जिस पे आपने मोमेंट निकालना है, जिसको आपने होल्ड किया है, between the point and the place where force is acting and the place where force is acting. जहां पे फोर्स लग रही है वहां से पॉइंट के बीच का जो आपको शेप होगी, जो आपको मूवमेंट होगा, वो देखना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम which we have, let's say that, and this cantilever beam, this is a force which is acting and this is a force which is acting. We have two forces, this is P1 and this is P2. This is P1 and this is P2 which is acting like this. T2 दो बार हो गया, इससे 2 लगाना है हमें यहाँ पे. Fine. Let's say that this is the point where we have to consider the moment. This is point A and this point A is at a different distance from these 2 points. That is, for example, from this particular point where the P2 is acting and from this particular point where P1 is acting, the distances are, let's say that this distance is small b and this distance is small a. Fine, let's say that this is point B and this is point C. Now, if you want to calculate the moment at point A, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, what we are doing is that we are analyzing the internal resistance. Internal resistance we are analyzing. For example, this force will try to, आपने इस point को hold किया, just hold this point and what exactly you are looking at, you are considering the effect of this force. तो आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, आपने उस इस point को, A point को you are just holding and you are looking for the movement created due to force P1. तो आपने देखा ये नीचे जा रहा है, it is like this. It means that you are holding this point, and if you are holding this point, then this P force will try to deflect the beam like this. नीचे की तरफ deflect करने की कोशिश कर रहा है, it will try to create a shape like this. It means that if this is trying to create a shape like this is like this, नीचे जा रहा है, this is a negative movement. This is a negative. मैंने आपको बोला this is hogging which is negative, this is sagging which is positive. But on the other hand, if you will consider this particular force, और आपने यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लिया, इस पॉइंट को होल्ड कर रखा है, इसके इफेक्ट में इसको मूव करा के देखोगे तो it will try to move like this. It means this is trying to create a positive effect. It means if you want to write the movement at point A, अगर मुझे लिखना है तो what I will do is that मोमेंट पूरी फोर्सेस का अगर मुझे लिखना है, अभी हम बात करेंगे वो भी क्या क्या होता है. अभी हम जस्ट साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे फोर्स है P1 into the perpendicular distance is this A, और इसका इफेक्ट क्या है, नीचे जा रहा है, this is negative effect. Similarly, प्लस का P2 into B, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है. जिस पॉइंट पे मूवमेंट लिखना है, बेंडिंग मोमेंट लिखना है, उस पॉइंट को होल्ड कर लो. जहां पे फोर्स का इफेक्ट देखना है, वहां से फोर्स के इफेक्ट पे उन दोनों के बीच में जो भी मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट की शेप देख लो. अगर वो ऐसे ऊपर मुड़ती है तो वो सैगिंग है, अगर वो ऐसे नीचे मुड़ता है तो वो हॉगिंग है, और उसको आप नेगेटिव मानोगे. ठीक, ये तो बेसिक सा साइन कन्वेंशन हुआ. सैगिंग मींस पॉजिटिव, हॉगिंग मींस नेगेटिव.
अब एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान रखनी है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहला होता है बेंडिंग मोमेंट, सीधा सीधा बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, ये पहली चीज होती है, एट एनी पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट। और दूसरी चीज होती है समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट। दो चीजें होती हैं। बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट ईदर फ्रॉम द राइट, या तो राइट से निकाल लो, और फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एनी पॉइंट, और फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब पॉइंट के या तो एक साइड से राइट से निकाल लो या लेफ्ट से निकाल लो, वो बेंडिंग मोमेंट कहलाता है उस पॉइंट पे, किसी भी एक साइड से, या तो राइट या लेफ्ट से, either right or from the left you are calculating the bending moment, then this is known as bending moment at any point. But if you are calculating the summation of moment, it means that you have to consider the effect of all the forces, from both the side, from both the sides, effect of all the forces from both the sides. Here you have to consider only from one side, here you have to consider only from both the sides, that is it basically consider the effect of force either from the left, या तो लेफ्ट की सारी फोर्सेस या राइट की सारी फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस का इफेक्ट कंसीडर करता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीम है, से दैट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान से समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास बीम है, इस बीम में फॉर एग्जांपल ये सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे पास, यहाँ पे दिस इज हिंज सपोर्ट एंड ऑन द अदर हैंड क्या होगा, रोलर सपोर्ट, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे ही होती है। ये मेरे पास पॉइंट है, लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ए पे रिएक्शन आएगा मेरा, लेट्स से दैट आर ए इज द रिएक्शन व्हिच इज कमिंग, एच ए भी आएगा, एच ए इज आल्सो कमिंग हियर, एंड दिस इज आर बी व्हिच इज कमिंग हियर, this is RB and this is point C. Now there are two different things as I told you. Number one is moment at point C. अब मैं आपसे कहूँ कि just write the moment at point C. तो moment at point C का मतलब either you will write the moment from left or from the right. For example, if you are writing from the effect only for the bending moment at a point, अगर सिर्फ bending moment निकाला किसी पॉइंट पे, तो either from the left or from the right किसी एक साइड की फोर्सेस को आप कंसीडर करोगे। अभी हम C पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैंने सी पे पहले राइट से निकालने की बात करी, तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ राइट से, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ तो या तो राइट से लिखूंगा या लेफ्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडरिंग फ्रॉम द राइट, राइट की बात करते हो तो अभी लेफ्ट को भूल जाओ, अभी व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट एंड दिस पोर्शन इज हैविंग फोर्स आरबी। तो अभी आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया सी को, यू जस्ट होल्ड दिस पॉइंट एंड यू आर ट्राइंग टू सी द इफेक्ट व्हिच दिस फोर्स विल क्रिएट, दैट इज आरबी विल क्रिएट। तो आरबी इज ट्राइंग टू मेक इट लाइक दिस, ये ऊपर ले जाना चाह रहा है, इट मींस दैट आरबी इज ट्राइंग टू मूव इट लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हो गया, the effect of RB is positive. From the right, the moment will be, if you write positive, that is RB into this distance, whatever the distance is. Let's say this is B and this is A distance, so into B. This is from the right. And if you want to write the moment from the left, again you have to just now you have to consider only the left part. Right part को ignore कर दो. Left part में from here to here. अभी ये इफेक्ट ऊपर लेके जा रहा है. From the left also this is creating a sagging effect. It means that plus का RA into ए, ये तो मोमेंट हो गया, इधर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, यू हैव टू राइट इट फ्रॉम द वन पॉइंट ओनली, सिर्फ एक पॉइंट से लिखना है। अगर मोमेंट की बात कर रहे हो ध्यान रखना इस चीज को, इफ यू आर राइटिंग फॉर द मोमेंट एट एनी पॉइंट देन यू हैव टू कंसीडर ईदर द मोमेंट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, यू हैव टू कंसीडर द फोर्सेस ओनली फ्रॉम द वन साइड। बट इफ यू आर राइटिंग द समेशन ऑफ मोमेंट फॉर द सेम केस, इसी केस के लिए अगर मुझे समेशन लिखना होता तो समेशन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी। ऐसे केस में क्या होता है, नाउ यू हैव टू कंसीडर द बीम as a whole beam. अभी आपने आधा आधा करके निकाला था, अब आधा आधा करके नहीं निकालना, you have to consider the beam together, you have to consider the forces together, that is you have to consider the effect of RB also, you have to consider the effect of RA also. Now if you are writing the moment about point C, summation of moment about point C, then in that particular case अब आपको पूरी बीम इकट्ठी एक बार में लेनी है, तो अब आपको एक मूवमेंट को पॉजिटिव और एक मूवमेंट को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इतना पोर्शन लिया था और इतने पोर्शन में इसको पॉजिटिव मान लिया था, इतना पोर्शन लिया था, इतने पोर्शन को इसको पॉजिटिव मान लिया था। अभी पूरा पोर्शन लेना है, तो इसका मतलब पूरे पोर्शन में या तो बीम ऐसे मुड़ेगा, दो ही चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, या तो पूरा बीम ऐसे मुड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट, या फिर पूरा बीम ऐसे मुड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट, दो ही चीजें हो सकती है। आधा अधूरा तो हो नहीं सकता कि ऐसे मुड़ जाए, बीम तो पूरा मुड़ेगा भाई, या तो ऐसे मुड़ जाए या ऐसे मुड़ जाए। इसका मतलब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू कंसीडर ईदर दिस मूवमेंट टू बी पॉजिटिव और दिस मूवमेंट टू बी पॉजिटिव, किसी एक चीज को पॉजिटिव मानना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अभी पूरी बीम इकट्ठी मुड़ रही है। पहले क्या था, सिर्फ इतना से इतना पोर्शन मुड़ गया था, तो इसको आपने पॉजिटिव मान लिया था, इसको अलग से पॉजिटिव मान लिया था। अभी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब भी बीम मुड़ेगी तो पूरी एक बार में मुड़ेगी ऐसे करके, या तो बीम ऐसे मुड़ जाएगी या फिर बीम ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब एक बार में जो भी होगा पूरा होगा। तो लेट्स से दैट कि व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर कंसीडरिंग, हमें एक मूवमेंट को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। वी आर कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ द बीम टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं इस मूवमेंट को पॉजिटिव मान लेता हूं तो जो भी फोर्सेस ऐसा मूवमेंट क्रिएट करा रही होंगी उन सबका इफेक्ट पॉजिटिव होगा। It means that if you have a look at it closely, then this RB is trying to create the movement like this only, ऊपर लेके जा रहा है, and this RA is trying to create a movement opposite. It means that the effect of RB here in this particular case we have to consider positive. It means that plus का RB किस पे लिख रहा हूं, into B, इसको पॉजिटिव माना, प्लस का RB into B। अभी RA कैसा इफेक्ट ला रहा है, RA ऐसा इफेक्ट ला रहा है, आपको पूरी बीम का इफेक्ट मान के चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। RA ऐसा इफेक्ट ला रहा है तो RA का इफेक्ट तो अपोजिट हो गया, माइनस का RA into A। अभी आप एक चीज ये जानते हो कि यहां से जब आपने मूवमेंट लिखा था C पे, तो RB into B और RA into A ये C पे मूवमेंट था, मोमेंट एट सी। अब मोमेंट एट सी तो बराबर होना चाहिए ना, तो ये इसके बराबर ही हो रहा होगा एक्चुअल में, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। इट मींस दैट द समेशन ऑफ मोमेंट विल ऑलवेज बी जीरो। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। फिर से समझ लो, अगर यहाँ पे और फोर्स होता, मान लो यहाँ पे एक फोर्स ये होता P1 और यहाँ एक और फोर्स होता है ये P2, ठीक। अब अगर मुझे P1 का इफेक्ट देखना होता ना, तो मैंने इस इफेक्ट को पॉजिटिव माना, ये मेरा पॉजिटिव है, तो P1 क्या कर रहा है, P1 नीचे लेके जा रहा है। इसका मतलब P1 का इफेक्ट अगर मैं लेता ना, अगर यहाँ P1 मान लो इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस C पे होता, तो मैं यहाँ लिखता फिर P1 का इफेक्ट क्या होता, नेगेटिव का P1 into C, नेगेटिव की अपोजिट जा रहा होता। सिमिलरली मैं P2 का भी इफेक्ट लिखता, क्योंकि मुझे तो सारी फोर्सेस का इफेक्ट लिखना है। P2 कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, P2 यही वाला मूवमेंट क्रिएट कर रहा है पूरी बीम में, जो क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट। तो P2 का इफेक्ट मैं क्या लिखता, P2 into D, P2 का इफेक्ट पॉजिटिव लिखता। जब भी किसी एक सिंगल पॉइंट पे मूवमेंट लिखोगे तो या तो इधर लेफ्ट से लिख दो या राइट से लिख दो, उतना ही पार्ट कंसीडर करो, उसको ऊपर नीचे जा रहा है तो देख लो, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। बट जब आप दोनों साइड का इफेक्ट कंसीडर करोगे तब आप समेशन का इफेक्ट क्रिएट करोगे, तो समेशन में पूरे बीम को एक बार में ही मोड़ना पड़ेगा, या तो वो ऐसे ऊपर जाएगा या वो ऐसे ऊपर जाएगा। बीच में पेन रख लो और बीच से पकड़ के घुमाओ, तो या तो पेन ऐसे ऊपर जाएगा या पेन ऐसे जाएगा, बीच में से ऐसे नहीं जा सकता, सी नहीं बन सकता, ठीक। इसका मतलब जब ये ऐसे जाएगा तो इसको पॉजिटिव मान लिया, तो जो भी फोर्स इसको ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर रही होगी, व्हाटएवर फोर्स व्हिच आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, दैट फोर्स विल बी हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट, एंड द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, दैट विल हैव a negative effect. Fine, that's why we have written it like this, and the summation of bending moment is always zero. It means that यहाँ से हमें दो चीज समझ में आ गई है कि summation of bending moment is always zero. Summation of bending moment will always be zero, and the bending moment at any point, this will be equal to either the bending moment from the right or the bending moment from the left. You have to consider either of these two things. This is all about the sign convention of the bending moment. ये bending moment का sign convention जरूरी है, तभी आप कोई भी चीज की एनालिसिस कर सकते हो। फॉर द एनालिसिस इफ यू जस्ट कंसीडर, अगर हम बेसिक से एनालिसिस एक देख लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर, बेसिक एनालिसिस इफ जस्ट कंसीडर, we have to analyze a basic cantilever beam. Let's say that this is a cantilever beam which we have to analyze for the today's lecture. Let's make this beam properly. This is a cantilever beam. Let's say that ये cantilever beam हो गया हमारा, इसको एनालाइज करना है। यहाँ पे ये लोड लग रहा है P, मतलब मुझे इसका एक SFD और BMD बनाना है, shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, लेंथ इसका L है। तो सबसे पहले shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए what we have to do is that always remember you have to, first step is you have to check the determinacy and indeterminacy. Determinacy means यहाँ पे reaction लगेगा, let's say that this is RA, this reaction is HA, and one more reaction will come here, this will be the bending moment, this is MA. It means that we have number of reactions 3, number of equilibrium equations are also 3, so the beam is determinant, this is 3 minus 3 is 0. The first step is to this. Second step is to calculate the reactions, all the reactions you have to calculate. Reactions calculate करने के लिए you already know that summation, first of all equilibrium equation, summation fx equal to 0 in x direction all the forces, that is HA जो है, this is the only force which is present in x direction, it becomes 0. Summation fy equal to 0, fy equal to 0, it means that RA minus का P equal to 0, which will give you RA equal to P, second आ गया।
नेक्स्ट इज समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट z एक्सिस इक्वल टू 0, z एक्सिस आपकी तरफ आ रही होगी तो वी आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट rotation. Summation of moment about a equal to 0, let's consider. Summation means you have to consider all the bending moments, whether external or internal, whatever it is. It means that summation of moment अगर आप ले रहे हो इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट को होल्ड करोगे, p का इफेक्ट इज नेगेटिव तो माइनस का p इंटू एल. इस पॉइंट को होल्ड किया हुआ है, ये ma कैसे लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है. इस पॉइंट को होल्ड किया हुआ है, अगेन जस्ट हैव अ लुक एट इट. ये p था, नीचे लेके जा रहा था, ma कैसे लेके जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएगा. इट मींस दैट इफेक्ट ऑफ ma इज पॉजिटिव, तो वी विल राइट प्लस का ma. समेशन में सब कुछ लिखना होता है. दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपको ma क्या मिल गया, मोमेंट अबाउट ए इज p इंटू एल, और आपका जो डायरेक्शन आपने माना है उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आया है दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव. अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन एरो बनाया ऐसे नहीं होगा, अपोजिट होगा. Now we have all the three reactions which are present. We have to just plot these reactions. We have to draw the SFD and PMD. To analyze this, first of all, as I told you that अगर आप सबसे पहले SFD की बात करोगे तो let's move from left to right. SFD की बात करते हैं. We are moving from left to right. Left to right movement. ऊपर वाली सारी फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाली सारी फोर्स नेगेटिव. लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, एक ही फोर्स मिली आपको आ रहे, तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, ये मेरे लोग बी है, मेरे पास स्पैन है ए बी, एक ही स्पैन है मेरे पास. सबसे पहले मैंने शियर फोर्स ए पे देखा, कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है, कितना, प्लस का आर ए, तो ये मेरे पास शियर फोर्स ए का हो गया प्लस का पी. अब ए से बी में चलता चला जा रहा हूँ, हर पॉइंट पे किसी भी जगह किसी भी डिस्टेंस एक्स पे, अगर मैं कोई भी डिस्टेंस एक्स यहाँ से मान लेता हूँ एस एक्स पे, मुझे शियर फोर्स कितना मिलेगा, प्लस का पी ही मिलेगा, कुछ है ही नहीं. इसका मतलब कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक प्लस का पी मिलेगा. इसका मतलब अगर मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो शियर फोर्स डायग्राम विल बी लाइक दिस ओनली. दिस विल बी माय एक्सिस, और इस एक्सिस पे ए से लेकर बी तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है पी, और वो भी पॉजिटिव का. तो दिस विल बी माय शियर फोर्स डायग्राम कंटिन्यूसली. दिस विल बी माय शियर फोर्स डायग्राम पूरा. एक्सिस हटा देते हैं, टेढ़ा हो गया है, ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम होगा. जो लेफ्ट से राइट पूरा सिर्फ एक ही फोर्स दिखा रहा है वो है P. दिस इज P. अब आप यहाँ कहोगे कि B पे तो उल्ट नीचे लग रहा है, तो मैं जब A से B जा रहा हूँ तो मैं B के जस्ट लेफ्ट पे आकर रुक जाऊंगा, नीचे नहीं उतरूंगा उसके. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मैंने बनाया है, दिस इज P ओनली. अगर मैं उल्टा जाता, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी. जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नीचे लगने वाली सारी फोर्स पॉजिटिव होती है. इसका मतलब लेफ्ट टू राइट, जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव भी तो बना ये पूरा, और कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक यही लगेगा. फिर नीचे नहीं उतरना, इस पॉइंट पे रुकना है, मतलब आर ए क्रॉस करना है. जैसे यहाँ से यहाँ गए थे तो आपने बी क्रॉस किया नहीं था, वहीं पे जाके रोक दिया था. दिस इज शियर फोर्स डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात अगर आप करते हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देन आल्सो यू कैन ड्रॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कंसीडर एनी डिस्टेंस x. आपने एक डिस्टेंस x ले लिया, मान लो ये x पे, इस x डिस्टेंस पे एक जनरल सा बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख ली. हमेशा ऐसे ही करना है. x डिस्टेंस पे मान लो मैंने लिख लिया mx, दिस इज इक्वल टू, इस x पे लिख रहा हूं मैं बेंडिंग मोमेंट, तो इसको होल्ड करूंगा. यहाँ से लिख रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट, तो ये वाले पॉइंट के और यहाँ तक के बीच का इफेक्ट देखूंगा इतना, तो mx लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले. तो mx में अब प्रॉब्लम यहाँ से क्या है, अगर मैं इधर से x लेता हूँ तो मेरे को इतनी सारी फोर्सेस मिल रही है, ma का भी इफेक्ट लिखना पड़ेगा, ra का भी इफेक्ट लिखना पड़ेगा. इट्स बेटर कि मैं क्या करूँ, इट्स इजी फॉर मी कि मैं x को इधर से कंसीडर कर लूँ. लेट्स कंसीडर द x फ्रॉम b. अगर मैं x फ्रॉम b लिखूंगा, x फ्रॉम b, तो इजी क्या पड़ जाएगा, एक फोर्स कम हो जाएगा मुझे अपने एनालिसिस में. अभी क्या होगा, mx अगर मैं लिख रहा हूँ तो इस पॉइंट पे आई एम राइटिंग द बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पे, एंड यू आर क्रिएटिंग द इफेक्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम राइट साइड. सिर्फ एक ही फोर्स है, वो भी नीचे ले जा रही है, तो माइनस का ये जो फोर्स लग रहा है p इंटू एक्स, यही होगा mx. mx इज इक्वल टू माइनस का p इंटू एक्स. इसका मतलब अगर मुझे b पे चाहिए तो x को कितना रखूंगा, 0. x इक्वल टू 0, तो मोमेंट कितना आ गया, 0. अगर मुझे a पे चाहिए तो x को कितना रखूंगा, l. मोमेंट कितना आ गया, माइनस का p इंटू l. अब मुझे प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू प्लॉट, दिस इज द एक्सिस. ये बहुत बेसिक सा चीज है, इसको मैं भी और डेप्थ में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी. ये आपने सेक्शन खींच दिया, बेंडिंग मोमेंट बनाना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पे माइनस का p इंटू l है. ये आपने लाइन खींचा और यहाँ से इसको जोड़ दिया. इक्वेशन किसकी है, लाइन की. y इज इक्वल टू mx. देखो y इज इक्वल टू mx, तो लाइन ही तो आएगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आ गया. ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 1 डिग्री चल रहा है, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ कितना है p इंटू l, और ये क्या है, this is your bending moment diagram. That is, we have plotted the internal shear force and internal bending moment variations at different points. Whenever you have to plot this FD and VMD, first of all you have to find the determinacy and indeterminacy, then you have to find the reactions by using equation. After that आप सारे सेक्शंस को कंसीडर करोगे वन बाय वन, हर सेक्शन पे shear force चले जाओगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जैसे चाहे, और सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे.
फाइन, आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं एक काम करूंगा, इसके साथ एक इन डेप्थ लेक्चर अपलोड करूंगा, वो चीज आप देख लेना। वो इन डेप्थ लेक्चर एक्चुअल में इंजीनियरिंग सर्विसेज का लेक्चर है, बट उसको पढ़ोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट काफी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में मैं अपलोड करवा दूंगा उसको कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक, तो दिस इज एस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।